चलिए चलिए, गुड लक। थैंक यू। जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर। हेलो, हाँ जी सर, सर सर, हाँ वो भी यहाँ पे भी स्टार्ट करा ना अभी जॉब, वो भी स्टार्ट करा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर।
4.0. I'm Shivani Mohan from New India Junction, and the special session is being aired live on DD National, NCPCR, and New India Junction YouTube channels. Pariksha Parv is an endeavor to equip our future generation, our students, with the right tools to combat examination related stress and anxiety that they go through. It is a paradigm shift through which we perceive exams as a celebration. After all, with every exam, we graduate to the next level and grow. And we have had wonderful experts coming here and sharing with us their valuable tips. Today, we have a wonderful guest, Dr. Nishant Goyal. He is the Associate Professor, Child and Adolescent Psychiatry and Center for Cognitive Neurosciences, Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand. He is someone who has been hands-on with his experience in facing all these situations and helping children combat whatever anxieties they go through. So, welcome, Dr. Goyal. Thank you. First of all, I would like to know, is exam stress real? Is it something to be worried about? Of course, exam stress is as real as giving exams, because stress is a situation, or stress is a state which helps us to understand and do things better. So exam, if you see from the perspective of being, it is a performance of what you have learned over a period of months and years, whatever you have grown as a person over a period of time. So this is just a period where you tell the world that yes, I have learned, and that definitely causes stress. So yes, exam stress is as real as the exams itself are. Okay, so we all have been students at some point in our life, and you also must have been. Absolutely. Did you also face exam stress, and was that the reason you chose this line? Of course, I have been a student, as we all are. We all have been studying all our lives, and after graduating from student to a professional, I chose to become a postgraduate teacher. So definitely some way or the other, exam stress and coping with the exam stress so that we become a better professional in our life did motivate me to choose this line. Okay, so tell us something about the kind of cases you see and the kind of problems children come to you with, and do parents also go through that stress? Of course, see, as we say that exam is a situation where we have to perform, Yes. or we have to give, or to show that we have learned something over a period of time. And for all of us, and mind it, all of us, if someone says that I am not stressed and I don't feel stressed during exam, that person is telling a blatant lie. Yes. So ये झूठ है. Exam is always stressful. Exam stress can be broadly divided into two types. Okay. So one is something called eustress, EUSTRESS. Okay. So eustress is something which drives us to work hard, to do better, and to perform to the best of our abilities. Now, because of various factors, internal factors, external factors, peer pressure, Yes. pressure from the family, pressure from the environment. So these things, they convert our eustress into something we call distress. I'm sure हम सब लोग ने ये शब्द या तो इस्तेमाल किया होगा या यूज किया होगा, distress. Yes. So this is distress which actually affects us negatively. हम सबको, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एडोलेसेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, और आजकल तो टीचर्स भी उतने ही स्ट्रेस्ड होते हैं अपने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में जितने कि उनके पेरेंट्स होते हैं, और बच्चे अपने आप में स्ट्रेस्ड होते हैं. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. और कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग नेगेटिवली when it comes to our performance, and somehow or somewhere whenever we are more and more stressed about exam, it negatively affects our output. Yes. And our output gets affected somehow or the other, our results get affected. And secondly, the expectations from teachers, expectations from parents, expectations from friends, brothers, sister, everything gets affected, and it takes a negative toll. And
it causes some more stress. So it becomes a vicious cycle, and that is how it is causing negative impact on the individual or the student. Okay. So do you think the stress is increasing by the years because the world is becoming more competitive? You know, from the time we were children and now we see our children, do you think they have more pressure? Of course, with changing times, changing expectations, changing rules, and changes in the environment, the stress is exponentially increasing. Okay. So, see, a child, when we were students, like we would get around 80-90% marks, everyone was happy distributing sweets. Today, if a child gets 98.7% marks, he or she gets compared with the person who gets 98.8% marks. True. So there is no upper level of happiness, there is no upper level of contentment. संतुष्टि का जो है वो पराकाष्ठा कुछ और ही हो गई है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बनता चला जा रहा है, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं तो हमारी सोसाइटी भी जो है वो डाउनहिल कोर्स में धीरे धीरे जा रही है. तो आपने जो मार्क्स का मेंशन किया, do you think getting certain number of marks ensures success in life, or how do we define, you know, what is success and what is achievement, and is it only you know, measured by a certain percentage? See, that is the irony of the situation. We have also grown up like this, that more the marks, the more successful you are branded, or the more successful you are told. So, but over the period of time, what we are seeing, particularly me as a mental health professional and our team who are working with such children, what we are seeing is that it is more that the skill a person acquires during the phase of learning, Okay. that defines a person, that defines the success of that individual. Marks are important. I am not saying marks are not important, Yes. but apart from marks, skill Yes. and aptitude of an individual towards their exams, towards their studies, it is equally and at times more important to become successful in one's life. Okay. I can give my example to you. Yes. I never scored an A plus in my life. Wow. And still I am sitting in front of you, and we are talking about exam and exam stress. So you can take me as a person who was extremely stressed during exam, and from my own learnings and the learning from my neighborhood, Yes. now today we are talking and discussing about how we can manage stress or we can ward off stress during exams. So we have a live audience who has joined us. Lot of children and their parents are watching this session, and we'll be getting a lot of questions. So I would urge you to keep on sending us your questions. One thing I would like to know, that often in a family there are 2 or 3 children, and everybody has a different capability, aptitude. So do you think वो sibling rivalry भी कोई role play करती है जब comparison किया जाता है बच्चों का? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं इस परेशानी से या तो गुजरे हैं या जूझे हैं, जहाँ पे हमको बार बार लगातार अपने कंटेम्प्रेरीज से, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे बड़े भाई से या हमारी छोटी बहन से कंपेयर किया जाता है. ये हमें समझना होगा, और ये आई एम श्योर हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िंदगी के पड़ाव में इस चीज़ को एहसास करते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है. हर बच्चे की कुछ खासियतें होती हैं, कुछ चीज़ों में उसको परेशानी होती है, और वो सबका अलग अलग होता है. सो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और एज अ एडवोकेट ऑफ द सोसाइटी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर बच्चे को इंडिविजुअली समझें, उनकी स्ट्रेंथ्स को पकड़ें, और उस स्ट्रेंथ को लेके उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करें. बिल्कुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, Yes. हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि हम कमज़ोर बच्चों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो मोर concerned about our own results, कि how many percentage of students are passing in our school, how many people are actually topping, you know, in the entire thing. तो कहीं ना कहीं जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं this is one of the reasons जो एक social divide है. कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उस social divide को endorse करता है, ना कि उसको भरने में मदद करता है. Otherwise it should be the other way around. True.
So, do you think, there is a role of other activities also? Like some child may be talented in sports or singing or extracurricular activities. And do you think continuing with some hobby like that can help you combat stress better? डेफिनेटली दैट इज़ वाई हमारे स्कूल्स में आज से नहीं, शुरू से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। जहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं कि कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, कोई लड़की हमारी डांसिंग में अच्छी है, कोई लड़का हमारा म्यूज़िक में अच्छा है, बजाने में या गाने में अच्छा है। तो पहले हम लोग के ज़माने में वो केवल नेम सेक के लिए होता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, पहचान रहे हैं, और कहीं ना कहीं engaging into extracurricular activity definitely helps a person ward off the stress. सिंपल सी बात है, मुझे वो चीज़ करने के लिए मोटिवेट किया जाता है जो मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं वो करूँगा तो ना ही मुझे खुशी मिलेगी, साथ में बायोलॉजिकली भी मेरे दिमाग के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो निकलेंगे, और कहीं ना कहीं वो मेरे को डी स्ट्रेस करने में, डिस्ट्रेस नहीं, डी स्ट्रेस करने में कहीं ना कहीं वो मुझे मदद करते हैं और करेंगे भी। बिल्कुल। तो अभी आपको पता ही है कि द होल वर्ल्ड हैज़ गॉन थ्रू दिस कोविड क्राइसिस, सो डू यू थिंक दिस क्राइसिस हैज़ आल्सो इंक्रीज स्ट्रेस अमंगस्ट चिल्ड्रन? बिल्कुल, कोविड-19 पैंडमिक, मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग को वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। कोविड-19 पैंडमिक जो है, अनफॉर्चुनेटली इसने पूरे इंसानियत को बदल दिया है और अभी भी बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, और पर्टिकुलरली हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 से लेके 6 साल तक का जो एज रेंज होता है, वो जो बच्चे हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो वो इन बच्चों के विकास पे पड़ा है। देखिए, बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो केवल पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, कैसे अपनी ज़रूरतों को बताना है, तो वो बच्चा, और कैसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलना मिलना है, बात करना सीखना, बोलना सीखना, सुनना सीखना। तो ये 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे जिन्होंने 2 साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, कहीं ना कहीं, ठीक है, हमने पूरी कोशिश की कि हम घर में रख के वो सारी सुविधाएं दें, ऑनलाइन क्लासेस हम उनकी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का जो परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रिटार्डेड हुआ है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है, और शायद आज हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो बच्चे बड़े होंगे, 8, 9, 10 साल और उससे ज़्यादा जाएंगे, तो कुछ बच्चे जो वल्नरेबल बच्चे हैं, सबके अंदर नहीं होगा, जो थोड़े वल्नरेबल बच्चे हैं, चाहे फैमिली के पर्सपेक्टिव से या सोशल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वल्नरेबल बच्चे हैं, उनमें डेफिनेटली देखा जाएगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, दे आर गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये एक हमें माइंडफुल रहना होगा एज एन एडवोकेट्स ऑफ द सोसाइटी। हम लोग, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, एज एन एडवोकेट ऑफ सोसाइटी हमको इसके बारे में माइंडफुल रहना होगा, और अपने बच्चों को उसी तरह से हमको आगे भी सपोर्ट करते रहना होगा। Sure. So I'm getting a lot of questions. I have the first question from our audience, Vikram Prasad from Gandhinagar. He's asking how we can select our counselor for children. What are the criteria for a good counselor? देखिए विक्रम, बहुत सिंपल है। सबसे अच्छा काउंसलर वो होता है जो आपको सुने। So the first and the most important property of being a good counselor, that person has to be a decent and a avid listener. Okay. कोई अगर मुझे सुनेगा तभी वो समझ पाएगा, और तभी वो मुझे मेरी चीज़ों का, परेशानियों का सलूशन दे पाएगा। तो आपके काउंसलर के लिए काउंसलर होना या बनना ज़रूरी नहीं है। आपका दोस्त भी आपका काउंसलर हो सकता है, आपके सीनियर आपके काउंसलर हो सकते हैं, आपके टीचर भी आपके काउंसलर, आपकी बड़ी बहन, आपका छोटा भाई भी आपका काउंसलर हो सकता है। अगर वो आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, और आपको ऑप्शंस दे रहा है। सलूशंस के नाम पे भाषण देने से अच्छा है बच्चों को ऑप्शंस देना, और उनको खुद बोलना कि तुम चूज करो, तुम्हें कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है। ओके, सो वी शुड एनकरेज आवर चिल्ड्रन, और जो भी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि जब भी आपको कोई परेशानी है उसको शेयर कीजिए, आप अपनी एक्सप्रेस कीजिए व्यूज़, आपको ज़रूर जहाँ से भी मदद चाहिए आप उनसे मांगिए और आपको मिलेगी। बिल्कुल।
Now, from parents' point of view, I would like to ask that what are the warning signs when you feel that now we need professional help? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैडम आपका. एज अ पेरेंट इफ़ आई फाइंड दैट माई चाइल्ड, अच्छा हाँ, यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए वार्निंग साइंस अलग अलग हो सकते हैं. तो वार्निंग साइंस जो 2 से 5 साल के बच्चों में हैं वो थोड़े अलग होंगे जो 5 से 10 साल या उससे बड़े बच्चों में होता है. तो मैं आपको एक एक दो वार्निंग साइंस हर एज ग्रुप का बताऊंगा. छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे, टॉडलर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, तो इफ द टॉडलर इन योर हाउस इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, इज getting up at night, becoming scared again and again over a period of time, and their pattern of daily living has changed over a period of time. दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. Then coming on to the age group of 5 to 10 to 12 years before adolescence. So the child gets more and more moody. He or she doesn't do things which he or she was doing or interested in doing over a period of time. Interaction with the family or the school has changed. Grades are deteriorating. We are getting things from PTM that आजकल ये इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है. Take it seriously. Coming on to adolescence, 12 to 18, 19 years of age. Adolescence बड़ी ही tricky age होती है. हम सब उससे, I am the mother of an adolescent and they like to be alone. तो वहाँ पे interaction important नहीं है. लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मूडी हो गया है. हाँ, छोटी छोटी बहुत बात पे इरिटेट होने लगा है. जाते हैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं, खाने के लिए बुलाओ तो आते नहीं हैं. ईटिंग हैबिट्स उनकी डिटीरिएट कर रही हैं. घर लौट के आ रहे हैं, देख रहे हैं उनकी आंखें लाल हैं या थोड़ा सा वो चलने में दिक्कत हो रही है. व्हाट आई एम हिंटिंग टुवर्ड्स इज सब्सटेंस, यूजिंग सब्सटेंस. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड अब्यूज मैडम, बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव कोनोटेशन. आजकल के बच्चे जो हैं इसको एक फैशन की तरह लेते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं डेफिनेटली. तो हम लोग को एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बहुत माइंडफुल होना होगा, कहीं हमारा बच्चा इस तरफ तो नहीं जा रहा है. और अगर हमें ऐसा मिलता है तो डेफिनेटली हमें अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ उनको टाइम देना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए. उसके बाद सलूशन अगर आप दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं दे पाएँ तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए आप. Sure. So I have another question from Gaurav from Shimla. He says children become frustrated and short-tempered sitting at home during exams. How should parents deal with the behavior change in children, especially in the pandemic? थैंक यू गौरव, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. और ये एक क्वेश्चन पेरिनियली वी हैव बीन फेसिंग सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड, कि बच्चे करे तो क्या करें, है ना. दिन भर घर में है, विच वी वर नॉट यूज टू ऑफ इट, है ना. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी परेशानी को पॉजिटिवली समझें. वी गिव देम ऑल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को बोलिए कि वो घर के काम में थोड़ा सा मदद करें. इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि हम बच्चों को मोटिवेट करें कि आप कुछ ऑनलाइन स्किल सीखिए, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे इस तरह कोई स्किल सीखें और घर में घर वालों की मदद करें. दिन का एक टाइम का खाना कम से कम सब लोग साथ में बैठ के खाएं, विदाउट मोबाइल्स इन योर हैंड्स. सो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं कि हम एक तो अपना इंटरेक्शन पैटर्न बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं जब हमें पता है कि घर में हम लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें मदद करता है हमारी खुद के स्ट्रेस को कम करने के लिए और उससे पार पाने के लिए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 2 चीज़ें तो आप कम से कम कर ही सकते हैं, और हर व्यक्ति अपने घर में ये चीज़ ट्राई कर सकता है. आई थिंक दोज आर वेरी सिंपल and doable tips. Another thing, doctor, that I want to ask, how important is timetable for a children? Like कई parents बिल्कुल timetable में बांध देते हैं बच्चों को कि 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है. So how can parents prepare a good timetable, and does it work? I mean, and a guest has also, a viewer has asked, Vineet. Yeah, Vineet, I can give you my example. I have never followed the timetable which I have made for myself. Okay, but all said and done, making a timetable, making a routine is very, very important to live a day
to its fullest, Okay. to be productive, Yes. to be assertive, to be organized in a day. Routine is very, very important. I have a suggestion which I have tried and I keep on telling to the people who are coming to me, that have a dynamic timetable or a dynamic routine. Okay. अब आपको पढ़ना है 8 से 9, शायद वो ना चले, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि आपको दिन में 3 घंटे पढ़ना है, एक एक घंटे के ब्लॉक्स में. Okay. और वो 3 घंटे का जो टाइम है, एक एक घंटे का ब्लॉक, वो बच्चे पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना. Let them एंड decide. एवरी टाइम द चाइल्ड डज इट, रीइंफोर्स दैट चाइल्ड. आपको जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को आपको 5 स्टार का चॉकलेट ही देना है, नहीं, जस्ट अ पैट ऑन द बैक, हाँ, और जस्ट स्मॉल जस्ट उसके बालों को सहलाना, इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड एनी रीइंफोर्समेंट, ये पेरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा, एनी रीइंफोर्समेंट हैज़ टू बी कंटिंजेंट ऑन द बिहेवियर. Okay. व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपके बच्चे ने अभी अच्छा काम किया है तो उसी समय उसको रीइंफोर्स करें, ना कि Not अच्छा ठीक है तुमने 3 दिन पहले किया था, अब 3 दिन के बाद तुमको चॉकलेट दूंगी. सो इट डजंट वर्क. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में भी हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बिकॉज ऑफ द सोशल एक्सप्लोजन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इन द सोशल डोमेन, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं. दे आर extremely intelligent. Yes. They are extremely fast. They are gradually becoming extremely righteous also. उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है. तो ऐसे में बच्चों को एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के बंधन में बांधना कैन बी काउंटर प्रोटेक्टिव एट टाइम्स. Okay. Let the child decide his or her own routine, his or her own timetable. Sure. So these are some ways you can handle these things on day-to-day basis. Okay. A lot of our children today are kind of addicted to screens, be it TV or telephone, social media. How do we handle that? मैडम आपने जो ये सवाल पूछा है, ये पहले बड़ा तो हम भी ये हैं बड़ा addicted. ये बड़ा क्लीशे क्वेश्चन है. जी. हाँ, मैं I'll start with this small quote that the child learns each and everything from their environment. Yes. There is a concept of something called social learning. True. Social learning, the concept was given by Albert Bandura. Okay. This is in psychology. So a child will learn whatever he or she is seeing from his or her environment. So बच्चे का मोबाइल छुड़वाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने बिहेवियर को टैकल करना होगा. वी हैव टू लिव by setting an example. Sure. Rather than asking them to don't take mobile, don't use mobile, and we have to sit with them, try to help them use the mobile or the screen in more constructive ways, rather than it's not important na that you say नहीं आप तो गेम नहीं खेलोगे. See, you can't stop a child from doing anything. आप जितना रोकेंगे उतना ही वो ज़्यादा करेगा. करेंगे फिर छुप के करेंगे. Exactly. So the point is that you have to channelize their interest, channelize their energy, and channelize their time into something which is taking them to a more constructive path. Sure. And the screen can be used for all these things. Now we are using a term called exam warriors. Instead of being exam warriors, we are exam warriors. Could you tell us something about it? And I can see a lovely book in front of you. I would like to refer to this book written by our Honorable Prime Minister. This is in Hindi and English both. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि अब ये इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 11 भाषाओं में उपलब्ध है. तो जब 3 साल पहले जब हम लोगों ने इस किताब को इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस समय केवल ये हिंदी और इंग्लिश में थी. सो वॉरियर्स जो टर्म आया है, चूँकि हम लोग हमेशा से इम्तहान को या एग्ज़ाम को वी टेक देम एज अ टेस्ट, हाँ, और अ वॉर. सो when we take exam as a war, we are motivated to do better. So if we can call our students as warriors, it will definitely positively motivate them. Not only calling them warriors, we are calling exam or the period of exam as a festival. और जिसको हम लोग त्योहार बोलते हैं. जिस तरह से हम त्योहारों को का इंतज़ार करते हैं, त्योहारों को खुशी खुशी मनाते हैं,
त्योहार एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो सब करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का और उनकी जो टीम है उनका ये मानना है कि इम्तहान को या एग्ज़ाम के टाइम को या परीक्षा के टाइम को हम एक त्यौहार की तरह देखें, उसको हम त्यौहार की तरह समझें और उसको त्यौहार की तरह मनाएं। तो ये एक मेजर तरीका है जिससे हम एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस को कम करने में ना केवल अपने बच्चों की बट बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के अलग अलग वर्गों की मदद कर सकते हैं। Okay. So could you tell us like 5 steps through which we can turn into exam warriors? क्योंकि एक दिन में तो ये चेंज नहीं आने वाला, तो धीरे धीरे हम क्या अपनी रूटीन में चेंज लाएं जिससे कि हम एग्जाम वॉरियर्स बन सके? डेफिनेटली, एंड इस चीज़ को बताने के लिए इस किताब में देयर आर 25 पॉइंट्स, देयर आर 25 चैप्टर्स एंड 25 पॉइंट्स। मैं इसमें से कुछ स्टेप्स को के बारे में आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, एग्ज़ाम से पहले का स्टेप। एग्ज़ाम से पहले का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्लीज़ कंसेप्चुअलाइज योर एग्ज़ाम्स एज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ rather than it is more important for your performance. तो इसको आप ऐसे देखें कि ये मुझे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, ना कि मुझे कुछ किसी को प्रूव करना है जी। ये हुआ एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के जस्ट शुरू होने से पहले उतना ही ख्याल अपनी दिनचर्या का रखें जितना कि आप अपनी पढ़ाई का रख रहे हैं एग्ज़ाम के बीच में। छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों में एंगेज करना जो आपको घबराहट को कम करते हैं, वो मदद करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमें पता नहीं होता करना क्या है हमको। उस रात को हम सबको नींद नहीं आती है, हम लोग सोचते करें तो क्या करें, मोबाइल हाथ में लेके रात भर गेम खेलते हैं हम लोग, है ना। क्या करना है, टेक दैट टाइम आउट टू थैंक all those people who have helped you sailing through the exam period in a good way. कुछ नहीं, अपने टीचर को थैंक यू का एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया या एक कार्ड भेज दिया, अपनी मदर को खाना खिला दिया बाहर ले जाके, छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि आपको भी खुशी मिलेगी और आपके अपनों को भी खुशी मिलेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम को वाकई में एक फेस्टिवल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। Now, all these terms sound good, but you know, a parent who is battling something, you know, lot of stress in terms of his children, somebody has shared with us, and we would like to put up that question. Abhinav from Hoshiarpur. Every time a day or night before any examination, my son falls sick due to stress. What should I do as a mother in such situation? So again, it's very, very important these days because there's a lot of pollution. Children, they don't eat properly, they don't sleep properly. So all these things are gradually making our children weak physically also. Okay. हमारे बच्चों को एक छोटा सा लूज मोशन हुआ तो उसको ORS पिलाने के बजाय हम फट से उसको एंटीबायोटिक खिला देते हैं। 2 गोली एंटीबायोटिक खिला के छोड़ देते हैं एंड द चाइल्ड बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दे वीकन अस फिजिकली और हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, एंड माइंड इट मैडम, स्ट्रेस जो होता है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल या मेंटल नहीं होता है। एनी फिजिकल प्रॉब्लम कैन लीड टू मेंटल स्ट्रेस and any mental issue can lead to physical problems. So they are correlated, interrelated with each other. तो वही है कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, बच्चे के हाइड्रेशन का ख्याल आपको रखना है, ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करते रहना है कि वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से अपना स्लीप लें, समय पे खाएं, समय पे सोएं। तो इस तरीके से आप उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसका भी ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान में। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो प्लीज़ सीक मेडिकल अटेंशन एज सून एज पॉसिबल। इंतज़ार मत करिए, घरेलू नुस्खों को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि अभी स्ट्रेसफुल पीरियड है, उसको जल्दी ठीक हो गए, अगले एग्ज़ाम के, कल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो प्लीज़ सीक medical attention as soon as possible. Okay. We have another question from Naman Gupta from Dehradun. It is often noticed during examinations that children sweat a lot writing a paper. What should I do? She's a teacher. What should I do as a teacher to help children in this case? It's a very good question.
sweating while giving exam or while taking examination is a sign of stress Okay. और इज अ साइन ऑफ एंग्जाइटी, घबराहट का निशानी होता है। कुछ बच्चे होते हैं, हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते जी। हैं जब हम लोग घबराते हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आप मेरे को पसीना भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। सो इस तरह से कुछ लोग जब एग्ज़ाम का पेपर लिखने बैठते हैं तो उनके हाथों में पसीने आने लगते हैं, पैरों में पसीने आने लगते हैं, वो लोग, दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो जाता है उनका। ऐसे बच्चों को आपको पहचानना है। एग्ज़ाम टाइम में पहचानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे बच्चों को आपको पहले ही पहचानना है, उनके साथ 15 मिनट एग्ज़ाम से पहले बैठना है, Okay. उनको मोटिवेट करना है और उनके साथ एक मैकेनिज्म डिवाइस करना है दैट हाउ टू हैंडल अ क्वेश्चन पेपर। Sure. So that, suppose I give you one example, there are 10 questions in a question paper. A child would be knowing 1 or 2 or 3 questions very nicely. तो उनको सिखाना है कि जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले अटेम्प्ट करिए आप, Okay. क्योंकि That works. because if you do that it will give you immense motivation and immense positivity. तो होता क्या है, ये मैंने अपने साथ भी देखा है, अगर मैं ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और तरीके से एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैंने कोई चीज़ आज से 6 महीना पहले पढ़ी है जो मैंने रिवाइज नहीं करी है, अगर मेरा दिमाग ठंडा है, मैं फोकस्ड हूँ अपने पेपर के ऊपर, मुझे वो चीज़ भी याद आ आएगी जाएगी। और मैं वो चीज़ भी लिख पाऊंगा। और ये मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है। सो दीज आर सम वेज वेयर द टीचर्स कैन एक्चुअली motivate their students to handle their anxiety during the exam in a more positive and constructive way. So every student is different, I feel, and they express their anxiety also differently. आपने कुछ बातें की तो मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। मुझे एक फोबिया था कि एग्जाम में मेरे पेन लिखना बंद हो जाएगा, तो I used to take 2-3 pens and I still ask my daughter that do you have enough pens? So she really laughs at me. तो आप कुछ अपना बताइए, आप स्ट्रेस में क्या करते थे एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट स्ट्रेस में देखिए, वो भी जब छोटे थे तब स्ट्रेस अलग था, जब बड़े थे स्ट्रेस अलग होता है। बहुत ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगा कि लोग उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम वाली रात को जी, आई वॉज टोल्ड बाय माई सीनियर्स एंड माई टीचर दैट सही से सोना बहुत ज़रूरी है। जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लगातार 4 से 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हम सबके साथ होता है कि एग्ज़ाम वाली रात में अगर हम सो भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सोए नहीं हैं। हमको होता क्या है कि देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड दैट इवन इफ वी स्लीप वी डोंट फील दैट वी हैव स्लेप्ट ऑफ, or we sleep very late, so you know. वो एक अलग चीज़ है। जी। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट स्टेट। Okay, there is a Twilight name state, for it. yeah, there's a name for it. So twilight state is a state where we do sleep, but हमें ऐसा लगता है कि हम सोए नहीं हैं। Okay. तो लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होता। बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो नींद ही नहीं आती है। मैं बस इतना बोलता हूँ कि आप 4 से 6 घंटा आंख बंद करके लेट जाओ। उस 4 से 6 घंटे में अगर 2 घंटा भी आपके दिमाग को आराम मिल गया, देन यू आर इक्विप्ड विद फ्रेश एनर्जी to take care of the paper which is coming on your way. Okay. So this is one thing which I tried, and I'm sure it's not that difficult to try. We Yes. all can try at our respective places. Even there are some yoga asanas, like I rely on shavasana, you know. सबके if you अपने have अपने any तरीके, those therapies. सबके अपने अपने तरीके होते हैं मैडम। मेडिटेशन हम लोग करते हैं, Meditation. कुछ लोग योगा करते हैं। म्यूजिक इज अ वेरी गुड हीलर। Yes. सम पीपल वर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक। Music. हम लोग हॉस्टल में क्या करते थे, एग्जाम वाले दिन सुबह में जब सब लोग नहाने जाते थे तो हम लोग क्या करते थे कि लाउड वॉइस में म्यूजिक बजा देते थे। तो कुछ लोग गुस्सा भी करते थे कि जो लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, गुस्सा भी करते थे। लेकिन somehow our floor in the hostel had a wonderful environment. I'm sure मतलब सबको लगता था कि हाँ ठंडे दिमाग से हम एग्ज़ाम लिखेंगे और डेफिनेटली वील डू बेटर देन थॉट ऑफ। So आपने जवाब दे दिया है। दीपिका जी फ्रॉम कोलकाता, शी हैड आस्क्ड समथिंग सिमिलर। प्लीज सजेस्ट दैट हाउ टू डील विद एग्जाम प्रेशर, बट इफ यू हैव एनी मोर points you can add to that. See, exam pressure is a type of exam stress. Now pressure can be of different. Pressure can be for different things. Pressure can be from yourself. Yes. Pressure can be from your school. Yes. Pressure can be from your parents. Pressure can be from your friends and relatives. Right. Now, that pressure can be for. It can be for securing highest marks.
this pressure can be for beating that person, in other words calling competition. हाँ, or this pressure is for achieving something which someone has never achieved. So the first step is to become aware of our pressures. So self awareness, मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा आपको दीपिका जी, please, and I'm sure this is part of the CBSE curriculum these days, life skill education. Okay. Right. So we all should go through what are the basic life skills. So one of the basic life skill is self awareness. Yes, certainly. So self awareness or awareness for that matter of fact. So we have to be aware of our pressure. जिस दिन हम अपने प्रेशर के अवेयर हो जाएं, आधा प्रेशर हमारा वहीं कम हो जाता है. उसके बाद when you are aware, then you know how to handle it. Yes, How to deal it. If you are able to do it, well and good. If you are not able to do it, take help. Okay. Take help from your friends, brothers, sisters, an elder in the family. हाँ, छोटे बच्चे भी कई बार आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं. So anyone you can take help from, and definitely pressure खत्म नहीं होता दीपिका. प्रेशर को हैंडल करना हम सीखते हैं, उस समय हम प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं हम लोग. So do you think younger kids handle stress better in some ways? That depends. Okay. What stress, what pressure. But एक चीज़ मैं आपको definitely बोलना चाहूँगा, the way and with the time we grow up in our life, pressure definitely increases. Maybe younger children, छोटे बच्चे जो अभी हम लोग को सुन रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे मेरे से, बोलेंगे नहीं हम भी बहुत stressed out हैं. लेकिन I would like to tell all of us that as we grow up in life, pressure always increase. Yes. But at the same time, we become wiser, we become more, intelligent word मेरे को नहीं बोलना चाहिए, we become more informative, we learn ways how to tackle that pressure. हम कुछ नया सीखते हैं, फिर कुछ और pressure आ जाता है. So having pressure, tackling with the pressure and learning from the pressure is a long ongoing process which goes all our life. और एक बड़ा अच्छा एक कार्टून किसी ने बनाया था, the only time and place when the stress goes off is when we lay down in our grave. Yes, that is. और ये सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई है. As long as we are living, there we will have be to some be stress. we have to face pressure, we have to face stress in some way or the other. And we can't deny that younger kids don't have. I'm reminded of that little girl from Kashmir who had sent a message to Prime Minister Modi ki homework अभी ज़्यादा मिलता है, something of that sort. It was very sweet. Okay, I have another question. Dushyant At least, Prashant. madam, now people have a avenue where Yes, they can interact with. She had sent a video that Exactly. मोदी जी छोटे बच्चों को होमवर्क क्यों मिलता है, बड़े बच्चों को मिलना चाहिए. इसलिए our honorable prime minister envisaged this Yes. program. This is one of the motivating factors. Wonderful. And we are sitting in front of you and we are talking about exam Yes. stress, exam pressure. True. Somebody said कि अभी तो एग्जाम शुरू हो गया है, अब आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं. बट एग्जाम चल रहा है, वो भी तो अपने आप में एक प्रेशर जी, है. और नेक्स्ट ईयर भी तो आएंगे. So So we grow with every exactly, exam, exactly. and we can't work on it for one day before the exam. It has to be an ongoing It's an ongoing process. activity. Yes, ma'am. So Dushyant Prashant has asked how to control my negativity and self-criticism due to fear of examinations. Again, it's I wish I was knowing what is the age range or age of Dushyant. So Dushyant, it is very, very important again to first of all become aware of your negativity. Yes. What leads to negativity, whether it is the performance, whether it is the peer pressure, or whether this is your parental pressure. So once you are aware of it, Okay. you have to use another life skill, Okay. which is called critical thinking. Okay. How you do use critical thinking, that मेरे को ख़राब लग रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, नहीं कर पा रहा हूँ. मैं इसको उल्टा भी तो सोच सकता हूँ ना, कि अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत करता और बेहतर परफॉर्म कर पाता. बिल्कुल. हाँ, एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि आज मैं अच्छा नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं, tomorrow is going to be a better day, I'll perform better.
Yes. फिर मैं बोलूँगा तीसरी बात, मदद लेना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम खुद से नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं. टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, टेक हेल्प फ्रॉम योर पीयर्स, फ्रेंड्स, जो अच्छा सोचते हैं, जो एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखते हैं, जिनका एटीट्यूड हमेशा हेल्पिंग होता है, उनकी मदद लीजिए. डेफिनेटली परेशानी को जब हम एक से ज़्यादा लोग मिलकर डिस्कस करते हैं तो उसका हल कुछ बेहतर निकलता है. ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने. एग्ज़ाम से भी ज़्यादा आई थिंक रिजल्ट के दिन बच्चे बहुत टेंस होते हैं. एंड डू यू थिंक वन लिटिल फेलियर डिफाइंस योर लाइफ? अगर बाई चांस कभी नहीं अच्छे आए मार्क्स तो उसको कैसे लेना चाहिए? Absolutely not. As I said, one little failure can never, even one day performance cannot define a person. Yes. That is why there is a mechanism where our exams, they keep on happening over the year. Yes. हाँ, and कहीं ना कहीं I'm sure in the new national education policy also, or otherwise also, things are happening across the curriculums. Okay. Not only in the 10th curriculum or 12th curriculum, even in our medical curriculum, there is a sea change in our undergraduate and postgraduate curriculum where people are given more emphasis on learning skills rather than spending a lot of time on theory. Yes. Practical information and knowledge is becoming more and more important. Okay. So skill based learning is gradually, changing the way we perform. Certainly. So आने वाले समय में इन एग्जाम्स के जो पॉइंट्स हैं कि आप कितने नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव होगा. ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आप हम लोग सब जानते हैं. दैट वाज वन वे ऑफ वार्डिंग ऑफ द परसेंटेज प्रेशर. So gradually through various national policies or state level programs, the education department and other departments are actually trying to inculcate skill based learning so that the whole process of studying or the whole process of education becomes less worrisome for us. That is so reassuring, and you are from academics, so the right person to shed some light on that, because we used to study by rote, That is changing. Now I have another question from Mahi John from Bangalore. It is observed that the children are indulging more on internet instead of reading or writing, due to which they are facing health issues. What can be done for children to not completely skip learning from traditional methods such as books? So he has the other point of view. Thank you, Mahi, for asking this question. I wish somebody actually raised this issue. Being a postgraduate teacher, I am also seeing the same thing happening in my setup also. So I give you one example, ma'am. I'll start with an example. We have discussions, topic discussions, where we ask our students to make a presentation for 15 minutes. Okay. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मिनट के प्रेजेंटेशन के लिए 20 स्लाइड बनाते हैं, और स्लाइड बनाने के उसमें हम किताब से कॉपी पेस्ट करके हम लोग उसमें लिख देते हैं. अब करते क्या है, पैराग्राफ का जो ऊपर वाली 2 लाइन है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, पैराग्राफ की नीचे वाली जो लास्ट लाइन है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया. अब बीच में क्या लिखा है किसी ने पढ़ा ही नहीं. सो somehow relying too much on electronic ways of learning. I'm not saying that they are not good, they are very good, they help in different ways. Yes. But we should try to strike a balance in using internet as well as using books. And I'm sure you must be very young, Mahi. If you go to the library, take this book, and try to smell this book. This is something very, very motivating. So please try to strike a balance between getting information from the internet, using the information from the internet, and spending some important time. And I am sure, please, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 घंटा पढ़ना, आधा घंटा. Give time to books. साल में 4 बुक्स खरीदिए और उनको पढ़िए. So कहीं ना कहीं reading books has its own advantages over internet based learning. Sure. I have another question from Mohini Chaudhary from Roorkee. Everybody is talking about time management. I am totally clueless about time management. Help me out. Rohini, na? Ji. So Rohini. Mohini. Sorry, from Roorkee. Mohini. So Mohini, again, time management is like 5 fingers of your hand. Yes.
So the way 5 fingers of your hand are different, time management is different for different individuals. I would suggest that you try to figure out what you are doing, what are your short term goals. हाँ, आपको अगले 10 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, या 1 साल में क्या करना है. आपको लग रहा है कि साल भर का टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, आप 6 महीने का करो. आप 6 महीने का करने में स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, आप 1 महीने का करो. अगर आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है, आप रोज का अपना टाइम टेबल बनाओ. एंड एज आई सेड previously also, use that time to do things what you intend to do, and when you are able to do that, enjoy that or celebrate that. Sure. Which is the basic crux of this entire Pariksha Parv. Celebrate your exams, celebrate your performance. That is definitely going to make you a better and stronger person for the life. That's great. So we have another question from Vasudev from Motihari, Bihar. डिप्रेशन होने के क्या क्या सिम्टम्स हैं? स्टूडेंट स्टडीज़ पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वासुदेव जी. वासुदेव जी, डिप्रेशन के लक्षण जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है या मन का खराब रहना या उदास रहना. जिन चीज़ों में पहले हमको मन लगता था, हमको इंटरेस्ट आता था, आजकल हमें उसमें मन नहीं लग रहा है. हमें थका सा शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं. इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो फंक्शनिंग है, चाहे वो सोशल फंक्शनिंग हो, चाहे काम का फंक्शनिंग हो, पढ़ाई का फंक्शनिंग हो, अगर ये आने वाले या पिछले कुछ 15-20 दिन या उससे ज़्यादा से हैम्पर हो रहा है, तो आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. आप अपने आसपास जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनसे जाके आप मिलिए. तो दूसरा क्वेश्चन मैडम इनका था कि स्टूडेंट स्टडीज़ में पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो कैसे पता चलेगा कि उसको अगर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले फाइंड आउट करना कि ये जो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, ये कहाँ पे है. क्लास में है, घर में है, और उसके इन्वायरमेंट को पहले हमको पहचानना है. तो उसके इन्वायरमेंट को जब हम पहचानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये बच्चा जो है या तो पढ़ाई में कमज़ोर है, या वाकई में कंसंट्रेट करने में उसको तकलीफ है, जिसको हम लोग एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो ये एक तरह का बीमारी होता है. कुछ बच्चे जो होते हैं, जो थोड़े बदमाश किस्म के होते हैं, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमको ऐसे बच्चों को पहचानना है, ना कि पकड़ के उनको धमकाना है ना. हमें उनको पहचानना है और बैठ के उनकी मदद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सबके कंटेक्स्ट अलग अलग होते हैं और सबका जो मैनेजमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता उसमें नहीं करते. तो ठीक है ना, ठीक है ना. जो अच्छा करते हैं उसमें हमको मोटिवेट करना है, जिसमें हमको अच्छा नहीं लगता उसको जस्ट पास होकर निकल जाना है. अब सारे के सारे सब्जेक्ट में सारे के सारे बच्चे, मैडम आप मेरे को एक चीज बताओ, आप मेरे को एक चीज बताओ आप, एंड ये आपके माध्यम से ये सवाल मैं हर पेरेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर समाज में हर बच्चा फर्स्ट आने लगे, तो सेकंड कौन आएगा? बिल्कुल सही सवाल है. ये प्रेशर जो है, ये हम खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं. बिल्कुल. सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वर्तिका from Agra Kent. She asks, what are the ways to reduce the tension of career for students? So this is like a long term when we talk of career. Definitely. Again, वर्तिका, ये बहुत important है. जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, the way we are growing up, we are gradually developing likings for a particular subject or liking for a particular field. Again, सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से या ग्रुप में बैठ के डिस्कस करने के माध्यम से हमें उसको पहचानना है. हमें अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है. एज अ पेरेंट और टीचर हमको उनको मोटिवेट करना है कि अगर मेरा बच्चा मास मीडिया में जाना चाहता है, तो उसमें उसको मोटिवेट करना है. ज़बरदस्ती पकड़ के उसको डॉक्टर बनाने से ना बच्चे का कोई भला होगा, ना आपका कोई भला होगा, ना समाज का कुछ भला होगा. तो आपको ये चीज़ समझनी है. तो ग्रेजुअली आपको इस तरह से चीज़ों को पकड़ना है, और 10th ख़त्म होते होते या 12th तक पहुँचते पहुँचते आपको
कम से कम 3 प्लान बनाने हैं. अगेन मुझे यही बनना है, एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर सम स्टूडेंट्स. Yes. So you should always have a plan A, plan B and plan C. Okay, that's a good one. Discuss with your counselor, discuss with your friends, discuss with your parents, and we should also motivate that okay, for this plan you take these subjects. Okay. और आजकल तो कैरियर काउंसलिंग को लेकर रेगुलरली प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलेज लेवल पे प्रोग्राम होते हैं. तो वी शुड ट्राई टू, if I am not able to figure it out from myself, I should take external help. Why not? So do aptitude tests help in these, like earlier we had very rigid subjects like medical, non-medical. Now we have a lot of liberal arts. They can pick and choose their subjects. So that also helps. Absolutely. Aptitude test at times it really helps. आजकल तो computer based test के ज़माने में there are so many ways. You can check your own interest. You can check your own skill. Sure. And you can go ahead for that. Okay. पेरेंट्स को बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों के स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, अपने बच्चों की शॉर्टकमिंग्स को समझें और उन शॉर्टकमिंग्स को ख़त्म करने के बजाय उन शॉर्टकमिंग्स से बच्चों को ग्रो कराने में बच्चों की मदद करें. Okay. So I think we have come to the end of the questions. Any last few words before we call it a day? सो देखिए, एज वी सेड, एंड ये परीक्षा पर्व का चौथा सीज़न है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और देश भर में हमारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे न केवल हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ साथ हम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. पेरेंट्स टीचर्स तो सेम ही है ना, अधिकतर टीचर्स पेरेंट्स होते हैं, अधिकतर पेरेंट्स टीचर होते हैं. पेरेंट्स कैन बी द टीचर ऑफ लाइफ. सो हम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी रेगुलरली जो मन की बात या जो परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग वॉक्स के लोगों के साथ बात करते हैं. तो कहीं ना कहीं जब हमारा जो गार्जियन है या जो हमें संभाल रहा है, जब वो हमारे पे ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं हम भी उन चीज़ों को लेके ज़्यादा माइंडफुल हो पाते हैं, सीरियस हो पाते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ हमारे स्टेट की मशीनरी जो है या जो सेंटर की मशीनरी जो है, जो एडवोकेसी का जो ग्रुप है, वो लोग भी माइंडफुल हो रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये सब करते करते आने वाले समय में परीक्षा का जो टाइम है, एग्ज़ामिनेशन का टाइम है, वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस. आप सुनते होंगे कि रिजल्ट के तुरंत बाद देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ पीपल कमिटिंग सुसाइड. तो एज अ प्रोफेशनल मेरा सबसे पहला गोल है कि कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने आसपास के बच्चों को दे पाऊँ ताकि वो स्ट्रेसफुल पीरियड को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली हैंडल कर पाएँ. और लाइफ बहुत प्रेशियस है, लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है. कभी भी हमें ऐसा लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को पहचानिए, समझिए और जो भी बगल में हैं आपके, उससे मदद लीजिए. अगर मेरे पास कोई लोग, आपके पास कोई आदमी आता है जिसको आप देख रहे हैं कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उससे बात करिए. 2 मिनट जो है आप किसी को अगर देते हैं तो आप एक लाइफ बचा सकते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये विसंगतियां हैं या ये जो प्रॉब्लम्स हैं एग्ज़ाम रिलेटेड पीरियड में, इसको धीरे धीरे करके हम समझ और सोच के माध्यम से ख़त्म कर पाएंगे. Sure. So kindness and compassion, I think, rules the day, and nothing is more precious than life. I am sure with all these tips, all the students and parents will get a lot of valuable ways to combat exam related stress. I thank NCPCR and Dr. Goyal for joining us today and having such a wonderful session. It's been very, very fruitful for me too, and I'm sure it was for the audience. Thank you so much. Namaskar.